أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session of electronic circuit devices. Hope you all are fine and have a good health. Up till now, if you have any kind of query in previous sessions, so you may ask by the question and raise your query. I will resolve your query and answer your questions. And if you don't have any kind of question or query, then we continue today's session. Today the topic of our online lecture is the topic of book published for op-amps with negative feedback. We already discussed the aspect of negative feedback in operational amplifier, and now we again continue this session in today's online lecture. An op-amp can be connected using negative feedback to stabilize the gain and increase frequency response. That's the main reason to prefer the negative feedback as compared to the positive feedback. And what's the consequences or the feature that we use the positive feedback? The positive feedback is not such kind of feedback, it's a parallel path to provide or bypass the system of the process directly provide the signal from input to output. That's a particular thing that we use the positive feedback, that is a provision path to provide directly source of input signal to the lower side. That's the main feature we use to the negative positive feedback in our op-amp or in control systems. And negative feedback feature we already discussing. Negative feedback takes a portion of the output and applies it back out of phase with the input, creating an effective reduction in gain. This closed loop gain is usually much less than the open loop gain and independent of it. So, closed loop voltage gain that we called ACL. The closed loop voltage gain is the voltage gain of an op-amp with external feedback. The amplifier configuration consists of an op-amp and an external negative feedback circuit that connects the output to the inverting input. The same thing with the closed loop gain is produced when the negative feedback is connected to an op-amp. Otherwise, the gain would be performed, but the particular gain without the negative feedback we called as an open loop gain that we called AOL, and an external negative feedback circuit that connects the output to the inverting input. The closed loop voltage gain is determined by the external component values and can be precisely controlled by them. Non-inverting amplifier is an op-amp connected in the closed loop configuration. Now we are talking about the non-inverting amplifier. And before that we are discussing about the inverting amplifier, the particular input signal providing to the source of an op-amp. Configuration as a non-inverting amplifier with control amount of voltage gain is shown in this figure. So before discussing this figure, I want to ask that if anyone have any kind of question or query, please feel free to ask. I will answer your question or resolve your queries. So hopefully no one have any kind of question or query. Then we continue our session, which is the non-inverting amplifier. If we talk about the non-inverting amplifier, so it is understood the input signal should be the non-inverting. That's the main thing which we are using here, which means we provide the input signal in the non-inverting input side. The non-inverting means the positive side of the op-amp, and
The negative feed, the inverting amplification, inverting input side should be connected as a feedback voltage divider circuitry. Then with the control, then with control amount of voltage gain is shown in this figure, the input signal is applied to the non-inverting, that is positive input. As you can see in this figure, we provide the input sinusoidal AC signal at the non-inverting input of an op-amp. The input is applied back to the inverting, that is negative input, through the feedback circuit. Closed loop formed by the input resistance Ri. You can see this is the input resistance that is connected at the feedback side and connected directly to the ground. And the feedback resistor RF, you can see this one is we call the feedback resistance RF. This creates negative feedback as follows. Resistors, input, and feedback resistance form a voltage divider circuit, which I already said, which reduces V out, which means it reduces the V out as per the desired or user required signal, and connects the reduced voltage Vf to the inverting input. The feedback voltage is expressed as in this form: the feedback voltage equal to input voltage divided by the input plus feedback resistance multiplied by the output voltage that we get at the output side of the configuration of the below mentioned circuit. So we extract the formula from voltage divider rule, and it's a simple formula of this non-inverting amplification feedback formula. Now, the difference of the input voltage that we call Vin and the feedback voltage Vf is differential input to the op-amp. As shown in figure 12-17, this differential voltage is applied by open loop voltage gain of the op-amp AOL, and we know that the open loop voltage gain is produced at the open loop, which means the feedback is not connected at this level, and produces an output voltage expressed as in this form, which means the output voltage equal to the open loop voltage gain multiplied by the factor input voltage minus feedback voltage. That's the main thing we got at the open loop voltage configuration output voltage. The attenuation that we called factor B, attenuation is the reciprocal of gain, which means gain is the required and the positive aspect of op-amp, but attenuation is the factor which is the opposite effect of gain. Attenuation we represent by the alphabet B and by the formula Ri divided by Ri plus Rf, substituting B V out for feedback voltage in the output voltage equation, and after placement of this formula we got V out equal to open loop voltage gain multiplied by the bracket input voltage minus attenuation factor multiplied by the output voltage. This is the output voltage configuration when the open loop gain is connected. Up till now, if you have to see and revise this aspect, and we take a short break of Azan of 1 minute, you have to recall all these aspects. And if you have any kind of question, please uh, ask your question after 1 minute.
Now, students, after Azan break, we continue session. Up till now, if you have any kind of question, please ask. And if you have any kind of query, please raise your query. I will answer your question and resolve your query. अ, जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. सर मेरा एक सवाल था, यहाँ से इनपुट वोल्टेज, द डिफरेंस ऑफ द इनपुट वोल्टेज वी इन, सर ये तो मैं क्लियर हूँ यहाँ पर। लेकिन जब अगली बात वो कह रहा है एंड द फीडबैक वोल्टेज वी एफ, सर ये फीडबैक वोल्टेज क्या होता है? अगर थोड़ा सा मुझे इसमें आप क्लियर कर दें। एक जगह ये फीडबैक मेरी समझ में नहीं आया, और दूसरी मर्तबा अटेंशन बी ऑफ द फीडबैक सर्किट, सर ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, बाकी सारी चीजें क्लियर है। ठीक है जी, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैंने ये चीज़ बताई थी, एंड इन दिस सर्किट वी हैव डिस्कस दैट the status of output we get by this loop that we call feedback. फीडबैक का लिटिल मतलब यही है कि आउटपुट का जो स्टेटस अपेयर यहाँ हो रहा होता है उसको इनपुट पे इस तरह से या ओपैम्प को इस तरह से दिया जाता है, और ये जो तरीका रास्ता होता है इसे हम फीडबैक लूप कहते हैं। यहाँ के स्टेटस के यहाँ के जो स्टेटस के लेवल के वोल्टेज हैं वो फीडबैक वोल्टेज कहलाए जाते हैं। तो यहाँ तक वो फुली क्लियर हो गई ये बात। सर ये माइक पता नहीं क्यों दब रहा हुआ है, समझ में नहीं आया, लेकिन ये मुझे क्लियर नहीं। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि आउटपुट के जो वोल्टेज यहाँ से अपेयर हो रहे होते हैं और वो स्टेटस जो हम ओपैम्प के ज़रिए से ओपैम्प को हासिल करते हैं उस लूप के लेवल ऑफ वोल्टेज को फीडबैक वोल्टेज कहा जाता है, जिसको वीएफ कहते हैं। ठीक है, आउटपुट के स्टेटस को सर कहते हैं जी। सर सर ये बात तो ठीक है, लेकिन सर हम ओपेम के अंदर दो दो पावर्स देते हैं ना, एक तो पॉजिटिव पावर होती है, एक नेगेटिव पावर होती है। जी तो इसकी इसकी जो वी एफ नेगेटिव पावर दी हुई है, बेसिकली तो हमने इसके आउटपुट से ली हुई है। लेकिन हम वहां पे तो हम जब आप ओपेम लगाते हैं जी तो उसके अंदर तो ऑलरेडी टू पावर्स जारी होती हैं। जी, ठीक है। असल में ये हमने कल डिस्कस किया था। इसमें दो बातें हैं। ओपैम्प्स के मॉड्स होते हैं, दो मॉड्स होते हैं जिसे कहते हैं डिफरेंशियल मॉड, और एक होता है कॉमन मॉड। एक मॉड और होता है जिसका नाम है सिंगल एंडेड मॉड। सिंगल एंडेड मॉड, कॉमन मॉड और डिफरेंशियल मॉड में फ़र्क ये होता है, ये जो आप पावर कहते हैं इसको इनपुट सिग्नल कहते हैं, जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल होता है। जो पॉजिटिव सिग्नल इनपुट सिग्नल ओपैम्प को आप देते हैं वो आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल कहलाता है, और वो इनपुट सिग्नल जो आप इन्वर्टिंग या नेगेटिव के वायर में लगाते हैं या टर्मिनल पे लगाते हैं वो इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है, जो आप ओपैम्प को प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आप जब इनपुट अगर एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग सप्लाई और नॉन इन्वर्टिंग सप्लाई ओपैम्प को प्रोवाइड करें तो ये कहलाता है डिफरेंशियल मोड। मतलब आप दोनों इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के टर्मिनल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से एक होता है कॉमन मॉड। कॉमन मॉड का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को एक ही तरह से आप अगर सप्लाई प्रोवाइड कर दें तो उसे कहते हैं कॉमन मॉड। ठीक है, इसकी मैं इमेज भी दिखा देता हूँ या, कि तीन मॉड पड़े थे। जी जी, पूछें। सर यानी कि सीरीज मोड कह सकते हैं हम उसे, कॉमन मोड को। हाँ, सीरीज मॉड कह सकते हैं, लेकिन उसका वर्ड है तो हम उसे सीरीज नहीं कहेंगे क्योंकि उसका तुक नहीं बन रहा है इसका हवाले से। नहीं नहीं सर, मैं अपने समझने के लिए कह रहा हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे हमने कनेक्ट सो कर दिया जी है। जी जी जी, ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। इसको अगर आप देखें, ये मैंने कल मॉड बताया था, इसे कहते हैं सिंगल एंडेड मॉड। सिंगल एंडेड का मतलब ये होता है कि हमने भी प्रोवाइड द सप्लाई ओनली इन्वर्टिंग साइड एंड द नॉन इन्वर्टिंग साइड इज ग्राउंड। Another single-ended input of op-amp mod is we provide the source of AC supply on the non-inverting side, and the inverting side of an op-amp side is ground directly. This is the configuration which we call single-ended mod of op-amp, जिसमें हम सिर्फ एक ही सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होती है डिफरेंशियल मॉड। इधर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग सप्लाई प्रोवाइड करी है, इसे कहते हैं डबल एंडेड डिफरेंशियल मॉड। ये होता है सिंगल एंडेड डिफरेंशियल मॉड। अब इसमें हमने ये जिक्र किया था कि हम दोनों सप्लाई सिग्नल अलग अलग देते हैं। आप देखें दोनों सिग्नल की नेचर में फ़र्क है, एक 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और एक 180 दर्जे के जाविये से शुरू हो रहा है। दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस का फ़र्क कहलाता है। इसे कहते हैं कॉमन मॉड, जिसमें हम दोनों साइड को एक ही सप्लाई से फीड करते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्स ऑफ ऑपरेशन ओपैम्प के कहलाते हैं। सिमिलरली ठीक ये है भी सर। होते हैं।
अब इसी तरीके से हमने इसके बाद, ये तो मॉड हो गए, उसके बाद फिर हमने पढ़ा फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। जी। सर ये नहीं सर, सही है, ठीक है। वो असल में वो सिमिलरली जो भी आपने मुझे बताया, दिखाया था एक मॉड, उसमें दोनों में एक एक ही जैसी साइकिल चल रही थी, जी जी 0 डिग्री से शुरू हो रही थी। जी जी जी, वो सिंगल कॉमन मॉड कहलाता है। जी सर। अच्छा, यहाँ अगर देखें ना तो यहाँ कौन सा मॉड इस्तेमाल कर रहे हैं? सर यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो कॉमन मॉड ही है। नहीं, कॉमन मॉड नहीं है ये। देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इनपुट सप्लाई हमने 1 पर दिए नॉन इन्वर्टिंग, बस। ठीक है। आउटपुट अपेयर हुआ और आउटपुट का स्टेटस लेके हमने नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इनपुट तो एक ही है लेकिन, और आउटपुट भी एक ही है, लेकिन आउटपुट का स्टेटस फीडबैक लूप के ज़रिए से हम इन्वर्टिंग इनपुट के टर्मिनल ऑफ ओपैम पे लगाते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम कहलाती है, और ये सिंगल एंडेड मॉड कहलाता है क्योंकि हमने सिंगल सप्लाई प्रोवाइड करी है। ठीक है। ठीक है सर। सर तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? हाँ, ये बहुत एक अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसका जवाब मैं देता हूँ बिल्कुल। इसका एडवांटेज या इसको हम क्यों लगा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसका, लेकिन ये याद रखिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बात बताई थी ये। देखें ना, अब मिसाल के तौर पे, एक मिसाल से समझते हैं इसको। आपको ना भूख लग रही है बहुत, तो आपने खाना खा लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेट भर गया? भूख खत्म हो जाएगी। भूख खत्म हो जाएगी, और जब तक भूख खत्म नहीं होगी ना तब तक आप खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। ठीक है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि हम इनपुट सिग्नल यहाँ से सही है। प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अपने ओपैम को। हमारा एक डिज़ायर्ड सिग्नल प्रोड्यूस होता है, लेकिन होता ये है कि हम जब इसको हासिल करते हैं तो उस वक्त उतनी एम्पलीफिकेशन का और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतना सिग्नल मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फीडबैक के ज़रिए ओपैम को बताते हैं कि भाई जितना इनपुट यूज़र को आउटपुट रिक्वायर्ड था वो नहीं मिला। इनपुट से मज़ीद उसे एम्पलीफिकेशन या ओपैम उसे मज़ीद एम्पलीफाई करता है और फिर चेक करता है क्या स्टेटस आउटपुट के मुताबिक जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी उतना मिल गया है या नहीं। और अगर वो मिल गया होता है तो फीडबैक लूप काम करना बंद कर देता है। और अगर वो ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, अभी भी यूज़र के मुताबिक आउटपुट अपेयर नहीं हुआ, तो ओपैम उसे और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करके प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ओपैम में ऐसा क्या जादू है कि और भी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है गेन। ओपैम की खासियत जो कि मैंने अपने 2 लेक्चर पहले भी बताई थी, लेक्चर नंबर 30-31 में मैंने ये चीज़ बताई थी। ओपैम का ये जी सर। देखें, यूजुअली ग्रेटर देन 100,000 गेन होता है ओपैम का। दैट इज़ बी द ओपैम इज़ वेरी हाई वोल्टेज गेन। 1 लाख। इस जी जनाब, तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं ओपैम को बनिस्बत कन्वेंशनल बीजेटी एम्पलीफायर और बनिस्बत कन्वेंशनल एफईटी एम्पलीफायर्स। उन मकसद के लिए ओपैम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका जो गेन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है, और हमारी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं 100,000 के गेन पे तो मीट होती ही होगी ना। यस सर। तो इस मकसद, इस तरह हमें पता लगता है, और ओपैम में ऐसा क्या जादू है कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा देता है गेन। तो इसके अंदर जो गेन है, इसका वोल्टेज है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होता है, जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल को फुलफिल कर देता है। अब आप यहाँ पर देखें तो इनपुट सिग्नल मेरा छोटा है, लेकिन जब ये एम्पलीफाई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन या यूज़र के लेवल पे बढ़ा देता है। एग्जैक्टली। यहाँ तक होपफुली आपके सारे सवालों का जवाब हो गया, और कोई मज़ीद सवाल है और किसी और का भी तो पूछ लें। नहीं सर, थैंक यू। तो नहीं सर, थैंक यू। ओके जनाब, इसरार साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ आज माशाल्लाह, तो हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हम, अच्छा, अटेनुएशन का सवाल आपने पूछा था, हाँ वो आपने पूछा नहीं दोबारा। अटेनुएशन क्या होता है? अटेनुएशन एक फैक्टर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया था। गेन इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। हम गेन ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक या रिक्वायर्ड के मुताबिक, क्योंकि जितना ज़्यादा गेन होगा उतनी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, आउटकम एम्पलीफायर का उतना अच्छा मिलेगा। तो गेन जिसे हम यस ए कहते हैं, ये जो ए, ओपन लूप और क्लोज लूप गेन, इससे पहले मैंने क्लोज लूप गेन जिक्र किया था। कहाँ चल रहा है? हाँ, ये रहा क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन अपेयर होता है फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर।
और ओपन लूप गेन प्रोड्यूस होता है नॉन फीडबैक नॉन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के सर्किट में। तो ये फ़र्क है। तो ओपन लूप गेन ओपन लूप सर्किट में जिसमें फीडबैक इस्तेमाल नहीं होता वहाँ इस्तेमाल होता है, और क्लोज लूप गेन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ होता है। अच्छा, गेन की तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बता दी। अब अटेनुएशन क्या होता है? देखिए, अटेनुएशन एक चीज़ होती है जो कि रेसिप्रोकल होता है गेन का, जो गेन को ख़त्म करता है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे जैसे आपका आउटपुट या गेन प्रोड्यूस हो रहा था, या आपका एक सिग्नल आउटपुट पे आ रहा था, तो ना उसके अंदर नॉइज़ आ गई, इंटरफेरेंस आ गई, डिस्टर्बेंस आ गई, या किसी भी किस्म का नॉइज़ जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइट नॉइज़ कह लें, कम्युनिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाइट नॉइज़ आ गया, गॉसियन नॉइज़ आ गया, ये ऐड हो जाता है अगर किसी तरीके से ओप एम्प, जैसे इससे पहले भी हमने मेरे कल के लेक्चर में मैंने बताया था, या उससे पहले वाले में भी, कि आप नॉइज़ को किसी भी सिस्टम से एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसे रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं कोशिश करते हुए। तो जब ये नॉइज़ बढ़ने लगता है ना, तो इसका एक फैक्टर होता है, नॉइज़, हर किस्म की डिस्टर्बेंस नॉइज़ का एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं अटेनुएशन। अटेनुएशन उस फैक्टर को कहते हैं जो नॉइज़, जो गेन को कम करता है। तो आपके आउटपुट सिग्नल को कम करने वाले उस फैक्टर को, इफेक्ट को हम कहते हैं अटेनुएशन, जो गेन को कम करता है। अच्छा, अब इसको समझिएगा, ये नौइयत क्या चीज़ है। एक आपका आउटपुट अपेयर हो रहा है, ठीक है, अब यूज़र के मुताबिक ना उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, जैसे आप एक शादी में बैठे हुए हैं, अब और कोई जैसे डीजे डीजे होता है ना, उसको हम बुलाते हैं, भाई गाने बजाओ, गैर शरई काम करो शादियों में, तो आप बैठे हुए होते हैं उसमें, और गाने इतनी तेज़ आवाज़ से चल रहे होते हैं, आप अगले बंदे से जो आपके बराबर में बैठा है उससे बात भी नहीं कर पाते। ऐसा ऑब्जर्व किया होगा आपने? गाने चल रहे हैं यस और सर। अब बात ही नहीं कर पा रहे, आप कोई बंदा जी जी जाके बोल सर। रहा है भाई आवाज़ तो कम कर दे, हमसे हम बात तो कर लें हम। तो ये चीज़ अब ये देखें, आप एक यूज़र हैं और आपके सिस्टम का गेन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो कि आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको उसमें एटेनुएशन को ऐड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, यानी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसके ज़रिए के वैरिक को आप बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उसकी वजह से उसका गेन कम होगा और डिज़ायर यूज़र के मुताबिक वो मिल जाएगा। ये स्टोरी है एटेनुएशन के फैक्टर की, समझ रहे हैं? सर यहाँ पे एक सवाल बनता है। जी जी सर हम अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने हमें समझाया कि जब हम हमारी जो इनपुट सप्लाई होती है जी जी वो अगर जो आउटपुट सप्लाई के बराबर नहीं हो तो ऑप एम्प जो है उसको गेन करता है और वो आउटपुट सप्लाई के बराबर दे देता है। इन केस अगर हमारी आउटपुट सप्लाई पे वोल्टेज बराबर, वो सोर्स बराबर आ जाती है, तो फिर वो ऑप एम्प को इंडिकेट कर देता है कि भाई सप्लाई बराबर आ चुकी है, अब जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की। तो अटेन्युएशन की फिर जरूरत किस बात की है? हाँ, देखिए आपके इस सवाल में ही जवाब है उसका। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस सिनेरियो को समझा था कि मिसाल अगेन वही एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप एक जगह बैठे हुए हैं एज अ यूज़र, और यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वॉल्यूम तेज़ करो। तो एम्पलीफायर का गेन, जो बंदा बैठा है उसने बहुत तेज़ बढ़ा दिया, उसका गेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे बढ़ गया। अब मसला ये है कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आउटपुट जो यहाँ पे अपेयर हो रहा है ना, लेट से यहाँ जी जी आउटपुट सर। बहुत ज़्यादा अपेयर हो गया, या उसका गेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा हुआ है। तो होता ये है कि इन फीडबैक रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, इनको बढ़ाया जाता है और उससे गेन रिड्यूस किया जाता है। तो ये इस इफेक्ट को, इस मैकेनिज्म को एटेनुएशन फैक्टर कहा जाता है, जिसके ज़रिए से जो यूज़र की रिक्वायरमेंट गेन की है वो मीट की जाती है। अगर कम हो तो ये एम्पलीफिकेशन अपने अंदर सर्किट की वजह से इसको बढ़ा देगा, और अगर ज़्यादा हुआ हो तो इन रेजिस्टेंस को बढ़ाकर, जिसे अटेनुएशन भी कहते हैं फैक्टर, मतलब ये जो रेशो है ना, इन इन रेशो को आप कम ज़्यादा करते हुए, अटेनुएशन को इस्तेमाल करते हुए गेन को कम कर लेंगे और यूज़र की रिक्वायरमेंट डिज़ायर के मुताबिक वो मिल जाएगा। तो ये इसका तरीका है। ठीक सर। ओके जी, आगे ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम इसके साथ ही साथ। अच्छा, इसमें जो फर्दर हमने यहाँ तक बात की थी, सब्स्टिट्यूटिंग की बात कर ली थी। डिफरेंशियल इनपुट जो होता है वो उसका अगर आप यहाँ देखें तो इन दोनों का जो फ़र्क होता है, मवाजना करें डिफरेंशियल इनपुट निकालने का, तो एक है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जहाँ पे आपने अपना एसी सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है, the required signal which you want to amplify from the op amp. You provide that signal particularly at the non-inverting side of an op amp, and the feedback signal which you get from the status of output at inverting side of an op amp. Both the difference we can set the
difference of voltage, that V diff. Yes. अच्छा, इसके बाद जो है देन अप्लाइंग बेसिक अलजबरा, उसके मुताबिक फिर ये पूरी डेरिवेशन है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आउट इक्वल टू द ओपन लूप वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द ओपन लूप वोल्टेज एटेनुएशन एंड वी आउट, ये हमने यहाँ पे पढ़ी है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद अरेंजमेंट और ये चीज़ यहाँ पे हुई है, उसी चीज़ को आगे ड्राइव किया जा रहा है। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पर लेकर आ गए, तो यहाँ पे सिर्फ वी ओपन लूप सॉरी ए ओपन लूप और वी इन यहाँ पर रह गया, बाकी एस्पेक्ट नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। ठीक है, इज इक्वल की साइड से इस तरफ उस तरफ करते हैं तो उस टर्म का साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के अंदर वी आउट कॉमन था, हमने निकाल लिया कॉमन, और फिर यहाँ पर ये इक्वेशन बनी। सिंस ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ ए नॉन of the amplifier figure 12/16 is V out over V in, ये जो रेशो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का, ये वोल्टेज गेन कहलाता है। ठीक, इट कैन बी एक्सप्रेस एज V out upon V in, दिस इज द रेशो आउटपुट अपॉन इनपुट एंड वी अरेंज इज दैट ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय the 1 plus open loop gain into attenuation factor। देन इसके बाद फिर हमने the product of open loop gain with attenuation factor is typically much greater than 1, so the equation will simplify by अब इनको इन्होंने बताया कि ये जो फैक्टर है काफ़ी बड़ा है, तो इसको इन्होंने इस फॉर्म में लिखा और दोनों ऊपर नीचे हमने ओपन लूप गेन को कैंसिल कर दिया और 1/b और रेसिप्रोकल ऑफ अटेनुएशन वी गॉट। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ अटेनुएशन कोई बताएगा क्या होता है? अटेनुएशन का उल्टा क्या बनेगा? सर ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है अटेनुएशन, जी, तो सर इसका तो फिर बहुत ही कम हो जाएगा ना। देखें, अटेनुएशन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं गेन, और गेन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं अटेनुएशन। ठीक है, ये सर गे जी सही है, सही है, सही है सर, सही है, सही है। ओके जी। द क्लोज लूप गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एनआई एम्पलीफायर इज रेसिप्रोकल ऑफ द अटेनुएशन, उसने वही चीज़ कही यहाँ पे। क्लोज लूप गेन जो कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है, रेसिप्रोकल अगर आप करें तो वो अटेनुएशन बनता है, और अटेनुएशन का रेसिप्रोकल करें तो वो गेन बनता है, गेन का रेसिप्रोकल करें तो वो अटेनुएशन बनेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है जो तकरीबन सब लोग ही जानते हैं, बेसिक, क्योंकि ये रिलेटेड टू ईसीडी एडीसी के कोर्स से रिलेटेड है और ये सारी बातें वहाँ हो चुकी हैं और बेसिक कोर्सेज में भी ये बातें बताई जाती हैं। कम्युनिकेशन में बाकायदा गेन बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जिक्र होता है, और इस तरह की बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, चैनल कैपेसिटी, तो उनमें ये सब जिक्र होता है जो कि तकरीबन सब लोग ही जानते होंगे। अटेनुएशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी द फीडबैक सर्किट वोल्टेज डिवाइडर। अगर हम फिर अटेनुएशन की जगह उसका फॉर्मूला यूज़ कर लें जो कि हमें पता है कि आर आई डिवाइड बाय आर आई प्लस आर एफ, वोल्टेज डिवाइडर रूल ऑफ अटेनुएशन वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हम, तो इट विल बी अरेंज इन दिस फॉर्म। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अटेनुएशन का रेसिप्रोकल जो है वो क्लोज लूप ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कहलाता है। एट दी एंड फिर हमने ये अरेंजमेंट करी कि क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है वो 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है प्लस 1, वो आपका क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन के बराबर होता है। Notice that the closed loop voltage gain is not at all depend on the op-amp's open loop voltage gain. Under condition open loop voltage gain attenuation factor is very greater than to 1, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है 1 से। The closed loop gain can be set by selecting the value of RI and RF, और अगर आपको इस के गेन को क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफाई के गेन को सेट और एडजस्ट करना है तो आप इन दोनों पैरामीटर्स को तब्दील करते हुए इसके फैक्टर को अपनी डिज़ायर के मुताबिक ला सकते हैं। अच्छा, अब कोई मुझे ये बताएगा ये फैक्टर अगर मुझे यहाँ पे बढ़ाना हो तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ तब्दील करूँगा कि ये फैक्टर मेरा बढ़ जाएगा, और अगर मुझे ये फैक्टर जो कि नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप का कम करना हो तो ये राइट साइड पे मैं क्या चीज़ चेंज करूँगा कि ये चीज़ कम हो जाएगी। सिंपल सा आंसर 2 क्वेश्चन का मैंने पूछा है। सर एक में तो ये है कि अगर जैसे हमें यहाँ पे इसको बढ़ाना है तो हम वहाँ पे उनकी वैल्यूज को बढ़ा देंगे, आर एफ और आर आई की वैल्यू को। हम्म
सही। सॉरी, ये वो है ना सर, एटेन्यूएशन है ना, ये एटेन्यूएशन। हाँ, एटेन्यूएशन है सर। तो हमें अगर एटेन्यूएशन बढ़ानी है तो हम आर एफ और आर आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे, और अगर जी हमें इसको कम करनी है यानी कि गेन ज्यादा चाहिए तो आर एफ और आर आई की वैल्यू को कम कर देंगे। सही। वैसे इसका मजीद एक जवाब ये भी हो सकता है कि जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है ना, वो डिनोमिनेटर का फैक्टर कम करने से ये फैक्टर बढ़ेगा, और ये वाली रेजिस्टेंस बढ़ाने से ये वाला फैक्टर कम होगा। सिंपल। क्योंकि डिनोमिनेटर का जो इम्पैक्ट है बढ़ाने कम करने का, वो इन्वर्स रिलेशन डील करता है इस वाले फैक्टर की तरफ। ठीक है जी, नॉर्मल सही मैथमेटिक्स है। है ये। तो आपको सिर्फ आर आई को बढ़ाना कम करना पड़ेगा, जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है, उसके नतीजे में ओपन क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है वो आपके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। सर फीडबैक आर आई को खाली। सिर्फ आर आई को, आर एफ का इतना इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जी जी सर। आर एफ को बढ़ाने में, इसरार साहब समझ रहे होंगे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आर एफ को बढ़ाने पे ये फैक्टर बढ़ेगा, आर एफ को कम करने पे ये फैक्टर कम होगा, क्योंकि आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इस फैक्टर के। लेकिन आर आई जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आता है इस फैक्टर के। इसीलिए ये हमने चीज़ जिक्र की। बिल्कुल सर। ठीक है सर। अच्छा जी, शायद 8:15 होने वाले हैं मेरे ख्याल में। दूसरी क्लास का मैंने लिंक तो बना लिया, 10 मिनट बाद है। चलें कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इसके बाद आज के सेशन को एंड करेंगे और पीजी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। डिटरमिन द क्लोज लूप, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, तो अब सारे न्यूमेरिकल असाइनमेंट से रिलेटेड तो नहीं ज़रूरी, बट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने चाहिए। डिटरमिन द क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। एज यू कैन सी, हमें क्लोज लूप वोल्टेज गेन एम्पलीफायर का निकालना है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। ये तो पढ़ा है यस हमने। सर। इन दोनों चीज़ों को हम रख के ये मालूम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखें, आर एफ की वैल्यू 100 किलो है, वो उसने ऊपर रख दी है। आर आई की वैल्यू जो कि इनपुट रेजिस्टेंस की है वो 4.7 किलो है, वो डिनोमिनेटर में रख दी है। टेकिंग द रेशियो ऑफ बोथ दीज क्वांटिटीज एंड बाय एडिशन विद 1 we got the value of open a closed loop non-inverting amplifier voltage gain that would be 22.3। सर यहाँ पे एक बात पूछनी थी। जी सर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा वापस, डेरिवेशन पे जाइएगा सर, बस सर। सर यहाँ पे इन्होंने जब ये सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वी आउट इज इक्वल टू, ये वाली लाइन जो है सर, जब इन्होंने माइनस ए बी वी आउट को इन्होंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे वापस किया, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, माइनस से पॉजिटिव में आ गई। बिल्कुल। ठीक है सर। तो सर ये यहाँ पे वन कहाँ से आया है, क्योंकि हम तो बेसिकली सिर्फ पोलैरिटी चेंज करते हैं, तो वन कैसे आया ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि नीचे बार बार वन को यूज हुआ हुआ है और फिर इन दी एंड न्यूमेरिकल्स में भी उन्होंने वन को ऐड करा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे ये बहुत आसान है। इसमें आप देखें तो वी आउट और वी आउट इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो वो कॉमन लेंगे तो वो वन बन जाएगा, क्योंकि वी आउट वन ज़ा वी आउट और वी आउट इंटू दिस, तो ये टर्म रिवर्स में वही बन जाएगी। तो हमने वी आउट कॉमन ले लिया इन दोनों में से, जो कि कॉमन था, इस वजह से वन आ गया यहाँ पे। ओके सर। ठीक है जी, तो हम न्यूमेरिकल पे वापस चलते हैं, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम न्यूमेरिकल को सर एंड करते हैं। जी ठीक है सर। सर आर आई को अब यहाँ पे 4.7 किलो ओम रखा है, जी जी। तो अगर हम इसको इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो वहाँ पे वैल्यूज कम, उसकी जो है एटेन्यूएशन जो है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे अगर इसको हम कम कर देंगे तो उसकी एटेन्यूएशन जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, लेकिन अब हम अटेनुएशन की टर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अटेनुएशन वहाँ पर एक वक्ती तौर पे हमने यूज़ की थी, लेकिन अब हम ये कहेंगे, अटेनुएशन बिल्कुल ठीक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली फैक्टर बी का नहीं आ रहा है जिसको अटेनुएशन हमने कहा था। हम ये कहेंगे कि आर आई को अगर हम बढ़ाना शुरू कर दें तो गेन कम हो जाएगा, और आर आई को अगर कम कर दें तो गेन मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, ये गेन है, अटेनुएशन जी नहीं है। ओके सर। और इसका नाम पूरा है क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वोल्टेज गेन, ये इसका पूरा नाम है। ओके जी, इसके बाद एक मजीद एक्सरसाइज उन्होंने बताया कि जी इफ आर एफ
in the figure was mentioned equal and increased to 150 kilo ohm. अगर RF को फीडबैक रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं तो क्लोज लूप का जो वोल्टेज गेन है वो मुझे क्या मिलेगा? तो कोई मुझे बताएगा कि RF को बढ़ाने के नतीजे में इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट आएगा? RF पहले था 100 किलो ओम, अब हो गया 150 किलो ओम, तो RF को बढ़ गया ना RF, तो RF को बढ़ाने के नतीजे में अब मेरा क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन का रिजल्ट इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा आएगा सर, बढ़ेगा सर। जी जनाब, बढ़ जाएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन की अटेंडेंस कोई आप में से लेके शेयर कर दें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हम सेशन पर थोड़ी देर में एंड करते हैं क्योंकि हमें पीजी भी कंटिन्यू करना है सेशन अपना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये फैक्टर बढ़ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर आता है। ओके, साथ साथ हम जो कल का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे वोल्टेज फॉलोअर ऑफ दी ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। तो कल हमारा टॉपिक होपफुली ये होगा जो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। कोई सवाल अगर किसी के जहन में हो तो यू मे आस्क। थैंक यू सो मच सर। तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अब पावर जनरेशन का लिंक ऑलरेडी रेडी है और मैं उसे शेयर कर रहा हूँ, तो फिर वो भी ज्वाइन करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।